नाज़िया अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी और आलमी खबरनामा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुल्क में फिलहाल ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा, हुकूमत का बयान। कहा, हमारे पास तेल का जखीरा है मौजूद। पाकिस्तान में ईंधन का बहरान, स्कूल्स बंद, इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी, वज़रा नहीं लेंगे तनख्वाह। सरकारी दफातर के लिए भी हिदायत जारी। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, अमरीकी सदर का बयान। आबना हुर्मुज में तेल टैंकर्स को रोकने के खिलाफ ईरान को किया खबरदार। ईरान ने अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दागे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया दावा। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने वाले ममालिक आबना हुर्मुज इस्तेमाल कर सकेंगे, पासदारा ने इनखिलाब का बयान। जंग से एयरलाइंस कंपनियां दहल गईं, किरायों में होशरबा इजाफा। और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर अपोजिशन का मरकज पर हमला, हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान नहीं, जब तक कि खाम तेल की कीमतें 130 अमरीकी डॉलर फी बैरल के निशान की खिलाफ वर्जी नहीं करती। हुकूमती बयान के मुताबिक ईंधन की कीमतों में इजाफे का इम्कान नहीं, क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़ख़ीरा मौजूद है। ज़राए ने यह भी कहा है कि मौजूदा तखमीनों के मुताबिक खाम तेल फी बैरल $100 के करीब रहने की तवक्को है। इसी दौरान NSEA के CEO आशीष कुमार चौहान ने कहा है कि हालिया जंग के दौरान तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है और आज आपने जापान के साथ कोरिया में भी स्टॉक की कीमतें देखी होंगी। बाजार आज ही 7 से 8% तक गिर गए हैं। अगर आप पिछले 2 से 3 दिनों का जायजा लें तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि मुल्क में बहुत सारे ऐसे माहिरीन हैं जो कि रूसी माहिरीन को हैंडल करने में कामयाब रहे। And that's what India has done over 30 years, 25 years, 20 years, 15 years, 10 years kind of horizons. But if you indulge in day-to-day trading, then probably you will lose money. That's what we want to convey to the investors. So about the crude money, sir, the crude oil, because how the IPO for NSE is also expected to happen this year. Just wanted a couple of questions on that subject. One, where has the process reached in terms of appointment of bankers and discussions? What is not pure dilution, but the offer that you're looking at to give public in terms of the quantum of share sale, and what is the valuation that you're looking at as far as NSE itself is concerned? Valuation usually is determined by the merchant bankers, so they are yet to be appointed, so I don't know what will be the final sort of amounts, but even they would want to go up to the level when they are confident, so that would be pretty much the last day of the sort of the last day of the before the issue. So that's where I think all the other things are more in a way estimations rather than the real stuff, and the process is still on of determining the merchant bankers and all. Like in quarter four, so will the lower float of regulation that SEBI had approved, will that hinder or will that impact the timeline anyhow? No, broadly speaking, the SEBI regulations have allowed NSE like companies to go with smaller float because we are already literally we don't have a identifiable promoter and nobody owns very large stake who can be claimed as a promoter in NSE. That's why we have been very confident that once the merchant bankers are appointed, we'll have to do two things. One is the so it should happen in the month of March, hopefully. So what about the crude oil volatility plus the market volatility and the rupee volatility amid the Iran global uncertainty? As we have seen over last 7-8 days, there has been a huge increase in the oil prices, and today also you would have seen the stock prices in especially Asia, in Japan as well as Korea, the markets have gone down by 7-8% today itself. And if you take last 2-3 days, it's even much larger. पाकिस्तान में ईंधन के बुरान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईंधन अलाउंसेस में तखफीफ करने का ऐलान कर दिया। कौम को खिताब करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, पूरा खित्ता तनाज़े की जद में है और हम इससे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
सरकारी दफातर अब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और 50% मुलाजिमीन घर से काम करेंगे। ताहम इस फैसले का इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। इसके अलावा स्कूलों को 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग से पूरी दुनिया फिक्र मुब्तला हो गई है। सिर्फ जंग में शामिल ममालिक ही नहीं बल्कि दुनिया की बेशतर ममालिक जंग के मुज़िर असरात का सामना कर रही है। बरामदात तो मुतासिर है ही, महंगाई बढ़ चुकी है और ये बढ़ती ही जा रही है। गौर करने वाली बात तो यह है कि एक जानिब जहां दुनिया जंग से परेशान है तो वहीं दूसरी जानिब अमेरिका मौके का फ़ायदा उठाने में मसरूफ़ है। एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता 4 सालों में अमेरिका ने जंग से मुतासिर ममालिक को अपने हथियार खूब फरोख्त किए हैं और नफ़ा कमाया है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर उसने मशरिक़ वस्ता को तेल की शिपमेंट्स को रोकना तो जंग को मज़ीद शदीद कर दिया जाएगा। ताहम साथ में ट्रंप ने यह भी कहा जंग अब जल्द ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप ने यह इंतबा ऐसे दिन के अख्ताम पर सामने आया जब आलमी मंडियों में ऐसे खदशात देखे जा रहे हैं कि ईरान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के पीछे खड़ी है और जल्द पीछे हटने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। ट्रंप ने पेशगोई करते हुए भी कहा जंग 4 हफ्तों के टाइम फ्रेम से पहले ही ख़त्म हो जाएगी। ताहम उन्होंने वाज़ेह नहीं किया कि फतेह किस किस्म की होगी। ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ के जरिए तेल के टैंकर्स को रोकने की कोशिश की तो फिर अमेरिका की जानिब से हमलों में तेज़ी से इजाफा हो जाएगा। Missile launchers all over Iran and very deep under Iranian soil in many cases. The soil was no match. And we're also annihilating the manufacturing base that the regime uses to build drones and missiles at a rate that nobody thought was possible. We're knocking them out. We know where they all are. We're knocking them out. We're ahead of our initial timeline by a lot. I would say that we probably would not have thought after a month we'd be here. In addition to the fact that we've taken out the leadership twice and maybe 3 times. We want to keep it that way. As we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. Disruption, the United States is offering political risk insurance to any tankers operating in the Gulf, so we're putting up risk insurance. We'll perhaps go alongside of them for protection. We don't think it'll be necessary. If it is, and if they do anything, the price will be incalculable, I might add. We're also waiving certain oil-related sanctions to reduce prices. So we have sanctions on some countries. We're going to take those sanctions off till this straightens out. Then who knows, maybe we won't have to put them on. There'll be so much peace. But when the time comes, the U.S. Navy and its partners will escort tankers through the strait if needed. I hope it's not going to be needed, but if it's needed, we'll escort them right through. Thank you, Mr. President. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think so. Okay, and with respect Very soon. Look, everything they have is gone, including their leadership. In fact, ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से अहम बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि इसराइली अमेरिकी सफ़ीरों को निकालने वाले ममालिक आबनाए हुर्मुज़ का इस्तेमाल कर सकेंगे। जारी करदा बयान में पासदारान इनकलाब ने कहा इन ममालिक को आज से आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की मुकम्मल आज़ादी होगी। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनकलाब ने ईरान के बारे में ट्रंप की बातों को बेमाने करार देते हुए कहा कि जंग के खात्मे का तयन हम करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी हमसब को ईरान से जंग खत्म करने का मशवरा दिया। रूसी सदर और अमेरिकी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। बातचीत में पुतिन ने ईरान से जंग के जल्द खात्मे के लिए ट्रंप को कुछ तजावीज़ पेश की। इससे पहले भी सदर पुतिन ने कहा था ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की जंग ने आलमी तवानाई बहरान को जन्म दिया है। रूसी सदर ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई को मुबारकबादी का भी पैगाम भेजा।
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ईरान की जानिब से अरब ममालिक पर दागे गए ड्रोन्स और मिसाइल हमलों की तफसीलात को जारी कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने हालिया जंग के आगाज से अरब ममालिक के अपने अहदाफ पर 2000 ड्रोन्स और 500 मिसाइल दागे। न्यूयॉर्क टाइम्स में बताया गया है कि ईरान के मिसाइल कम होने के तासुर के बरखिलाफ हमलों की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई है, जबकि इसराइल की जानिब से ईरान पर किए जाने वाले हमलों की तफसीलात की अदम फ्राहमी रही। तो दूसरी जानिब ईरानी पास दारान ख्वाब ने कहा कि तल अवीव में 10 खैबर शिकन मिसाइल दागे गए हैं। दुबई की सैटेलाइट कंपनी ने मशीक उस्ता की तस्वीर फौरी जारी करने पर आरिजी पाबंदी लगा दी है। हाल ही में ईरानी हमलों में होने वाले अमरीकी नुकसानात की तस्वीर जारी की गई थी। जॉर्डन, यूएई और सऊदी अरब में अमरीकी मिसाइल दिफाई रेडार्स थाट को निशाना बनाने की तस्वीर भी शाये की गई थी, जिसके बाद अब कंपनी ने मशीक उस्ता की तस्वीर को फौरी जारी करने पर पाबंदी लगा दी है। कंपनी के मुताबिक खलीजी ममालिक, इराक और जंगी इलाकों को नई सैटेलाइट तस्वीर तकरीबन 96 घंटे ताख़ीर से जारी की जाएंगी। माह मुक़द्दस माह रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होते ही हरमैन शरीफैन में हज़ारों रजिस्टर्ड अफराद एतकाफ़ में बैठ गए हैं। सऊदी अरब में माह रमज़ान के 20वें रोज़े के साथ ही एतकाफ़ का आगाज़ हो गया है, जिसके लिए हरमैन शरीफैन में 15,000 से भी ज़्यादा अफराद ने खुद को एतकाफ़ के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुसूसी इबादात का सिलसिला शुरू हो गया है। लैलतुल क़द्र की तलाश में मुतकफ़ीन और मुतमरीन खुसूसी इबादात में मसरूफ़ है। तो दूसरी जानिब मशीक उस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस बैरून मुल्क परवाज़ों की मनसूखी की वजह से ज़ायरीन का गैर मामूली रश देखा जा रहा है। मशीक उस्ता में हालिया बढ़ती जंगी कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं, जिसने दुनिया भर की एयरलाइंस कंपनियों को भी हिला कर रख दिया है। अमेरिका और इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे ने फ़िज़ाई सनत को शदीद मुतासिर किया है, जिसके बायस दुनिया भर में एयरलाइंस कंपनियों के शेयर्स गिर गए हैं, जबकि किरायों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। मशीक उस्ता कशीदगी के दरमियान फ़िज़ाई सफ़र पर बड़ा असर पड़ा है। इस दरमियान दुबई से दिल्ली आने वाली परवाज़ों को महफूज तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरलाइन अड्डे पर लैंड किया जा चुका है। मुल्क पहुंचने वाले मुसाफिर ने एयरपोर्ट पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत में अपने मिले जुले तासुरात का कुछ इस तरह इजहार किया है। नहीं, वैसा अभी सिचुएशन हुआ नहीं था कभी, लेकिन अभी जो फ़्लाइट वगैरह की जो चीज़ है, थोड़ा एम्बेसी ने हेल्प किया था हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए कौन सा फ़्लाइट कब जाने वाली है। तो बुकिंग्स वगैरह सब हम लोगों ने कर लिया था, लेकिन सपोर्ट मिला था, रेगुलर अपडेट्स आता था। तो ऐसा कुछ मतलब अभी उतना सिचुएशन गंभीर नहीं हो गया था कि प्रॉब्लम आ जाए। फ्लाइट्स में भी प्रॉब्लम आ रही थी, मतलब फ्लाइट बंद था, आज ही पहला आया है। फर्स्ट फ्लाइट में से आज ही है। कल से स्टार्ट हुआ है। कैसा लग रहा है इंडिया आके वापस? बढ़िया घर आने में जो जैसा मज़ा आता है वैसे आ रहा है, वही बढ़िया लग रहा है। मैं सऊदी से आ रही थी, वो दमाम से कतर एयरवेज से आई, तो कतर में मतलब वो दोहा में आके होने सिचुएशन तो ऐसा कुछ हम लोगों को नहीं लगा, क्योंकि हम लोग जहाँ पे हम लोग को होटल में ठहराया था तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आवाज़ आ रही थी थोड़ा सा धूमधाम की, थोड़ा सा डर लग रहा। गवर्नमेंट की तरफ से आपको वहाँ पे एम्बेसी द्वारा कोई मदद वगैरह? कुछ मदद नहीं मिला। वहाँ की गवर्नमेंट के थ्रू कोई? हाँ, वहाँ के गवर्नमेंट के थ्रू तो हेल्प मिला, जो 10 दिन स्टे हुआ होटल में, सारा कुछ खाना पीना रहना सारा गवर्नमेंट के थ्रू? सारा गवर्नमेंट। यहाँ पे इंडिया आके वापस कैसा लग रहा है वहाँ के हालात? बस अब यहाँ तो कंफर्ट फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है कि कुछ भी हो सकता है कभी भी, ऐसा तो नहीं है। यहाँ से इसलिए तो कोलकाता ने जाके दिल्ली में ही उतर गए, चलो अपना कंट्री में तो आ गए ना। सिचुएशन भी थोड़ा नॉर्मल हुआ है, बम का जो मिसाइल है इसका भी नॉर्मल है, फ्लाइट भी नॉर्मल नहीं हुआ है पूरा बराबर, नॉर्मल होना स्टार्ट हो रहा है, पहले जैसा भी नहीं है। ये सिचुएशन अभी काफ़ी सही हो गया पहले से। लेकिन वहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू कोई हेल्प वगैरह प्रोवाइड? नहीं, गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वहाँ पे अभी जिसका वीज़ा एक्स्ट्रा हो गया है, टाइम पूरा हो गया, उसका कोई वीज़ा चार्ज नहीं लगेगा। और दूसरा ना बात यह है कि आप किसी होटल में रुके हुए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा वो लोग, जो भी होगा यूएई गवर्नमेंट उसको पे करेगा। गवर्नमेंट वहाँ पे पूरा सपोर्ट कर रहा है, जो भी प्रवासी वहाँ पे इंडियन का हो या नेपाल हो, किसी भी कंट्री का हो, गवर्नमेंट से वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। पर इंडियन एम्बेसी के थ्रू कोई हेल्प प्रोवाइड
वहाँ पे नंबर है, वहाँ पे अलार्म आता है, कोई मिसाइल गिर रहा है, ड्रोन गिर रहा है, कुछ भी हो तो इंडियन एम्बेसी से वहाँ पे एक क्या नाम है, टोल फ्री नंबर भी जारी करता है। उसके बाद मोबाइल पे मैसेज आता है कि आप अपना सही एरिया में जाइए, एक असेंबली एरिया में, खाली एरिया में। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे घर वालों के तो हाँ, घर वालों को तो प्रॉब्लम है। अभी जैसे मैं ही आया तो अब हमारा 2 बार टिकट कैंसिल हुआ, एयर इंडिया का था, फिर दोबारा मैं स्पाइस जेट का टिकट लिया, ये हमारा 60,000 पड़ा, यानी कि 60,000 का। वहाँ पे फ्लाइट्स भी कैंसिल हुए जा रहे हैं। हाँ, फ्लाइट जो कैंसिल हो रहा है वहाँ पे 10% करता है। मुल्क के कई बड़े शहरों में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत की खबरों के बाद अपोजिशन ने मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हुकूमत की तवानाई पॉलिसी और इसके दावों पर सवाल उठाए और कहा हुकूमत आवाम को असल सूरत हाल से आगाह करने के बजाय सिर्फ गुमराह कर रही है। रुकन पार्लियामेंट कांग्रेस प्रमोद तिवारी ने मुंबई और बेंगलुरु के बाद होटल्स में एलपीजी सिलेंडर्स की कमी की खबरों पर रद्द-ए-अमल दिया और कहा एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के लिए मरकजी हुकूमत और पेट्रोलियम वजारत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा हुकूमत ने पहले घरेलू और कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में इजाफा किया और अब कई इलाकों में गैस सिलेंडर की फराहमी में ताख़ीर की शिकायत आ रही है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मुल्क में फिलहाल ईंधन की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा, हुकूमत का बयान। कहा हमारे पास तेल का जखीरा है मौजूद। पाकिस्तान में ईंधन का बहरान, स्कूल्स बंद, इफ्तार पार्टियों पर पाबंदी, वज़रा नहीं लेंगे तनख्वाह, सरकारी दफातर के लिए भी हिदायत जारी। ईरान के खिलाफ जंग खात्मे के करीब है, अमरीकी सदर का बयान। आबनाए हुर्मुज में तेल टैंकर्स को रोकने के खिलाफ ईरान को किया खबरदार। ईरान ने अरब ममालिक पर 2000 ड्रोन और 500 मिसाइल दागे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया दावा। अमरीकी और इसराइली सफीरों को निकालने वाले ममालिक आबनाए हुर्मुज इस्तेमाल कर सकेंगे, पासदाराना इनखिलाब का बयान। जंग से एयरलाइंस कंपनियां दहल गईं, किरायों में होशरबा इजाफा। और एलपीजी सिलेंडर की किल्लत पर अपोजिशन का मरकज पर हमला, हुकूमत पर आवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। इसी के साथ आलमी खबरनामा का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंच चुका है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।